ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ جی حضرت مفتی صاحب، اس بندے کو لائن پر لیتا ہوں۔ وہ بتا یہ رہے ہیں کہ جیسے یہ جو مرغا مرغی ہوتا ہے اس کو کاٹا اور 2 بار میں جو ہے وہ گردن الگ ہو گئی، 2 بار میں یا 3 بار میں، تو اس کو کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں؟ اس کا کھانا کیسا ہے، کیا ہے؟ لائن پہ جوڑتا ہوں ان کو۔ جوڑیے۔ ہاں آپ نے جس ویکتی کو کال کیا ہے وہ अन्य कॉल पर व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात प्रयास करें। ہلو ہلو جی جناب، وہ مرغے کے تعلق سے جو معلوم کر رہے تھے آپ ہی کر رہے تھے؟ ہاں جی میں ہی کر رہا تھا۔ اچھا جی مفتی صاحب یہ لائن پر ہیں، ذرا اپنی بات ذرا آپ دوبارہ سے بولیں بھائی جان۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ صاحب ایک تھوڑا مسئلہ، جیسے کہ مطلب جو مرغا وغیرہ ہے چھوٹا جانور، اور اس کو ہم نے ذبح کیا تو تقریر تو 3 بار پڑھ دیا، تو اب معلوم آگے چل کے یہ ہو گیا کہ ابھی جو پورا ذبح نہیں ہوا۔ کیا چیز بولے؟ جیسے کہ مطلب مرغا ذبح کر رہے ہیں ہم، ہاں اور تکبیر پڑھ دیا، ہاں چاقو چلا دیا، اور چاقو چلانے کے بعد میں اس میں جو تو بیچ میں یہ معلوم ہوا کہ ابھی پورا جو تو ذبح نہیں ہوا، ابھی نس نہیں کٹا، اور چاقو پھیرٹ کے دوبارہ سے چلا دیا، تو اس میں وہ جو تو گردن جو تو الگ ہو گیا۔ ہاں تو اس کے گوشت کے بارے میں کیا حکم؟ بسم اللہ اللہ کو پڑھ کے کیے تھے نا؟ جی جی ہاں وہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ اچھا جی، ہاں کھا سکتے ہیں اسے۔ ذبح تو کر دیا، لیکن دوبارہ معلوم یہ ہو گیا، اندیشہ ہو گیا کہ بھائی ابھی یہ پورا ذبح نہیں ہے، نس رکا ہوا ہے کچھ، اور اسے کاٹنے کے لیے چاقو دوبارہ چلا دیا۔ نہیں کوئی حرج نہیں، ہو جائے گا وہ ذبح، اس میں کوئی حرج نہیں ہے سمجھے۔ الگ کر دینا ہاں وہ مکروہ ہے، لیکن اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اسے کھا سکتے ہیں، وہ حلال ہے، جائز ہے۔ اور ایک مسئلہ اور ہے تھوڑا سا۔ بولیے۔ جیسے کہ مطلب جو برتن ہے، اور برتن ہو کھانا بنانے کا، ہاں ہاں کھانا بنانا سبزی بنانے کا برتن ہے، ہاں تو اس میں جو تو ایک دن پہلے یا شام میں مطلب جو وہ کچھ حرام جو جھٹکے کا گوشت ہے وہ بن گیا۔ کیا چیز کا گوشت؟ میں نے کہا جو جیسے کہ مطلب جو جھٹکے کا جو گوشت ہوتا ہے ہاں تو حرام ہو گیا ہوں یا نہیں؟ تو ایک دن پہلے وہ بنا دیا، یا شام میں بنا دیا، اور صبح میں پھر جو تو اس میں جو تو دوسرا گوشت جو بنا جو تو حلال ہے وہ بنا دیا اسی برتن میں، تو اس کا وہ کھانا جو کیسا ہے؟ تو برتن کو دھل کر کے بنائیں گے نا کہ ایسے ہی بنا دیں گے؟ نہیں، برتن تو صاف کرنا پڑے گا، دھونا پڑے گا، صاف کرنا ہوگا نا، پہلی بار یہ بنائیں گے تو اس کو دوسرے کے بعد دھوئیں گے نا اس کو۔ نہیں دھوؤں گے تو، لیکن ایسا کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ مطلب آدمی جو تو اس کا تھوڑا بہت دھو لیتا ہے، جیسے کہ اسے دھو دیے ایک بار صاف پانی سے، دھو لیے، اس میں جو حرام چیزیں تھا وہ تمام چیزیں دھل گئی، جب دھل گئی تو پھر وہ پاک ہے۔ جو ہے حلال ہے اس میں بنا کے کھا سکتے ہیں۔ ایک منٹ ہاں بولیے، کیا بول رہے تھے؟ مطلب جو جھٹکے کا گوشت ہے وہ بن گیا، اس میں بن گیا، اور اگلے دن اس میں جو تو پھر اسے جو دھلا ہے وہ صاف، پھر اس میں حلال گوشت بنا لیا اسی میں۔ ہاں جائز ہے، جب پہلی بار جب آپ بنائے تھے تو اس کے بعد دوسری بار بنانے کے لیے آپ برتن کو تو دھوئیں گے نا، یا پھر بغیر دھوئے اس میں بنا دیں گے؟ نہیں دھوؤں گے تو دیا۔ ہاں تب دھو دیے تو وہ پاک ہے، وہ حلال ہے، اس میں جو بھی بنائیں گے وہ جائز ہے اس کے لیے، سمجھ رہے؟ اچھا حضرت ایک مفتی صاحب ایک مسئلہ میرا بھی ہے۔ ہاں بولیے۔ جیسے کوئی غیر مسلم ہے، غیر مسلم کی مرغے کی دکان ہے، ٹھیک ہے، ویسے بہت ساری جگہوں پہ ہوتا ہے، ہاں، اور جو غیر مسلم ہے اسی چھری سے وہ مطلب ڈائریکٹ کاٹتا ہے یا بغیر بسم اللہ پڑھے، مطلب وہ خود کاٹتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر کوئی مسلم جا کے اسی چھری سے حلال کر سکتا ہے؟
हाँ धो करके कर सकता है मैम, कोई उसमें हरज नहीं। अच्छा अच्छा, कर सकता है। उसमें कोई हरज नहीं है, उससे तो हलाल हो ही जाएगा, उसमें कोई हरज नहीं है। अच्छा अच्छा, चलिए कंफ्यूजन था हजरत। अगर ये कह रहे हैं तो फिर उसमें वो हलाल नहीं होगा उनके लिए। अगर उनके ज़बीहा अगर हम खा रहे हैं तो वो हमारे लिए जायज़ हलाल नहीं होगा। जी जी जी, फिर उस छुरी को धो के उसी छुरी से हम ज़िबा कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं बिल्कुल। अच्छा अच्छा जैसे हजरत। बहुत सारे मकान में ऐसे होता है, बहुत सारी चीज़ें दुकान पे आप देखेंगे जी, उसी छुरी से बनाया जाता है, तो उसमें कोई यानी हरज हम, नहीं। अच्छा अच्छा, शुक्रिया जज़ाकल्लाह, ये मसला हल कर दिया। मेरे जहन में कई दिनों से ये मसला खटक रहा था। मगर एक चीज और बता दीजिए हजरत, बोलिए। जैसे आजकल बहुत सारे भाई बाहर रहते हैं और वो लोग मुर्गे की दुकान पे जाते हैं गोश्त लेने के लिए, या किसी कसाई की दुकान पे जाते हैं, तो वो जो गोश्त बेचने वाला है, जो मुर्गा बेचने वाला है, तो वहाँ भी देवबंदी है, बदअकीदा है, तो क्या उसके हाथ का ज़बीहा हलाल है? हलाल नहीं है, उनके हाथ का ज़बीहा हलाल नहीं है, हराम है। हराम है। खुद से ज़बा करे, अगर जी लेना चाहते तो खुद से ज़बा करके ले, वरना उनके जी हाथ जी, का ज़बीहा जायज़ नहीं है जी। माशाल्लाह। और हजरत आजकल बहुत सारी फैक्ट्रियों में गोश्त कट रहा है और ये भी नहीं मालूम कि ये गोश्त जो आ रहा है, ये ज़बीहा किसने किया है, किसी वहाबी देवबंदी ने किया है या फिर किसी अहले सुन्नत ने किया है, मालूम ही नहीं चल रहा है। वहाँ से लेना जायज़ नहीं है, समझना पहले, कि तो ये शक है पहली बात कि हमें यकीन कामिल यकीन ही नहीं है इस बिना पर के वहाँ से, तो फिर हलाल अब हमको लिए तो ये नहीं है कि हम लज्जत के लिए या फिर गोश्त खाना हमारे लिए तो जरूरी तो नहीं है कि नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। जी 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 हजरत, समझे। हाँ, जब नहीं खाएंगे मर जाएंगे तो फिर इससे बचे, जब जी उसको नहीं खाएंगे तो उसके हराम का लुकमा अगर चला जाए तो फिर उसके लिए बहुत बड़ी नुहूसत है। जी हजरत, लुकमा चला जाए तो 40 दिन नमाज़ें कबूल नहीं होगी, जी जी जी, दुआएं कबूल नहीं होगी, तो फिर हलाल के लुकमे से बचे। अच्छा हजरत, एक और चीज है, अगर हमें मालूम है, पूरा यकीन है कि ये जानवर अहले सुन्नत ने ही ज़िबा किया है, चाहे वो भले ही गैर आलिम क्यों ना हो, उसका ईमान सुन्नी सही अकीदा वाला है, उसका ईमान मोमिनों वाला है ना, सुन्नी सही अकीदा है, मुसलमान है, वफादार रसूल है, गद्दार रसूल है, तो उसका ज़बीहा तो हर हाल में हम खा सकते हैं, लेकिन ज़बीहा ज़बाह करने से लेकर के आपके दस्तरखान तक आने तक का, जी, समझे, वो ज़बीहा किसी मुसलमान के अलावा किसी गैर मुस्लिम के लिए 1 मिनट के लिए या चंद सेकंड के लिए भी वो गायब नहीं हो, निगाहों के सामने हो। सुभान अल्लाह। हाँ, कोई भी मुसलमान की निगाहों के सामने हो, कि गैर वहाबी देवबंदी के निगाहों के सामने नहीं, बल्कि मुस्लिम निगाहों के सामने, सुन्नी सही अकीदा के निगाहों के सामने होना चाहिए। अच्छा अच्छा, अगर जैसे कोई बदअकीदा वहाबी देवबंदी भी है और अहले सुन्नत गायब हो गया और वहाबी देवबंदी मौजूद रहा, उसके खाने का क्या हुक्म है हजरत? उसका भी वही होगा, उसके तो काफिर के शक में वो शामिल होता है। जी जी जी, तो फारूक के शक में वो भी तो शामिल होता है, उसमें भी फिदिया फायद की क्या मसला है। माशाअल्लाह। हाँ, तो उनका भी वही, यानी हजरत ये जो फैक्ट्री का गोश्त आ रहा है जी, तो बहुत कर्रा मामला है और लोग बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी जानकारी के खाए जा रहे हैं, पूछ ही नहीं रहे हैं किसने ज़िबा किया है, किसने नहीं किया है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है। हाँ, इस ताल्लुक से मैंने एक मसला भी भेजा था आपके पर्सनल पे। जी हाँ, जी जी जी, हाँ, तो ये बहुत खुलासा के साथ मैंने उसमें भेजा है कि शक हो तो किस बिना पे उसमें खाया जाए, किस बिना पे, तो उसे अभी कोई खाना जरूरी नहीं होता है, समझे। अब हलाल का लुक़मा मिल रहा है किसी होटल में, अगर मालूम है कि सुन्नी सही अक़ीदा ने ज़बाह किया है और बनने से लेकर के काफिर के हाथों पे नहीं लगा है, दस्तरखान में आते तक, ऐसे तो अक्सर होटलों वगैरह में होता है कि कुफार बना के सुन्नियों से मदरसा मस्जिद से लाते हैं, बना करके मुसलमान के दुकान से ला रहे हैं, लेकिन फिर वो बनाने वाला कोई और है, हमारे दस्तरखान में लाने वाला कोई और है, काफिर है, बनाने वाला कोई और है, सुन्नी की निगाहों से गायब है, समझे। तो वो भी जायज़ नहीं हमारे लिए, समझे। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। भी बचे और उससे भी दूर रहे के लुकमे से हमें नहूसत, और फिर हमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारी इसमें खताएं पैदा होती है। फिर यहाँ से हमारे लिए खाना जरूरी नहीं है, लज्जत के लिए हम कुछ और खाएं, उसके लिए जरूरी थोड़ी है। जहाँ हमको यकीन है कि हाँ हमको यहाँ हलाल का लुकमा मिल जाएगा तो फिर वहाँ से खाए। आपने बिल्कुल सही फरमाया, हक फरमाया। और बहुत सारे हमारे भाई इस चीज के लाए, बहुत सारे अनजान हैं, कहते ही नहीं करते, बस मिल जाए। बिल्कुल, तो इससे बचना चाहिए मुसलमानों को। और वहाबी देवबंदी की दुकान भी देख के जाना चाहिए कि जिसकी दुकान से हम ले रहे हैं वो बदअकीदा तो नहीं है, वहाबी देवबंदी तो नहीं है, हमारे नबी के इल्म गैब का मुनकर तो नहीं है, हमारे नबी के कमाल का इनकार करने वाला तो नहीं है।
पहले देख लो उनको कि जो खा रहे हैं वो आ कहाँ से रहा है, उसका बनाने वाला कौन है, लाने जी वाला कौन है, समझे। जी पूरे देख करके तहकीक के साथ फिर उसके बाद वो हलाल के लुकमा खाए। अपने इमाम आजम का वो फरमान जो 7 साल वो बकरियां नहीं खाई थे, समझे। जी हाँ? बेशक एक तो बकरी रिवड़ में गायब हो गया था, वो उनके लिए तो जायज था, लेकिन तकवा ये कहता है उन्होंने नहीं खाया। जी हजरत एक और अल्लाह के वली मौजिन थे, हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम, इनका भी वाक़या है, बहुत मशहूर है। बहुत सारे ऐसे वाक़यात गर्दिश कर रहे हैं, किताबों में मशहूर है। तो बचा जाए इन चीज़ों से और ऐसे आराम के लुकमे से, और बनाने वाला गोश्त हो या फिर कोई भी ऐसा लुकमा हो जिस चीज़ से, समझे। जब यहाँ के कुफार और मुश्रिकीन के जो प्रसाद वगैरह होते हैं, जैसे कि आमतौर पर बटते हैं अगर भगवान के सामने, और जो अपने उस पर नहीं चढ़ाया है तो फिर वो हमारे लिए जायज़ है, समझे, लेकिन उससे भी बचा जाए, ठीक है। लेकिन जो नहीं चढ़ाया गया हो तो फिर उससे भी बचना उला है। हज़रत फतवा रज़विया में उससे भी बचा जाए कि उससे भी बचना उला है। निजासत वगैरह अगर ना हो तो खा सकते हैं, खाना में कोई हर्ज नहीं उसमें फिर, लेकिन बचना उला है, बचना बेहतर है, क्योंकि उनको उन पे हमें एतबार नहीं कर सकते, एतबार करना भी नहीं चाहिए हमें उन लोगों पर, ठीक है। बेशक हजरत। ठीक है, और कुछ कह रहे थे क्या जज़ाकल्लाह, कुछ और पूछ रहे हैं भाईजान क्या? हाँ जी हजरत जी। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। मतलब वो थोड़ा ये है कि जैसे कि मतलब जो लोग आगे जो तो ब्याह शादी जो तो होटल में कर रहे हैं, फ्लैक्स में क्या कर रहे चीज हैं। बोल रहे हैं, आवाज़ साफ नहीं आ रही आपकी। मैंने कहा जैसे लोग जो तो होटलों में शादी करते हैं, हाँ हाँ फ्लैक्स में शादी करते हैं, तो वहाँ से जो तो सभी लोग शादी करते हैं उसमें, हाँ हिंदू भी करते हैं और आपके जो तो ये वहाँ भी लोग भी करते हैं और अपने लोग भी करते हैं। तो उसमें जो तो बर्तन जो वहाँ के होते हैं तो उनमें सभी तरह का जो तो गोश्त बनता है। और वहाँ के जो बर्तन साफ करने वाले आदमी है, कहीं वैसे आने के घर की तरह जो तो बर्तन साफ करेंगे, अच्छी तरह की तरफ से धोएंगे, साफ करेंगे। तो वो तो ऐसा है जैसे आज शाम में यहाँ से रात में है, दिन में किसी और की है, शाम में फिर हमारी है, तो इस तरीके का तो वो थोड़ा बहुत उन पानी निकालते हैं और फिर। अच्छा मैं अभी कॉल करता हूँ, मैं स्टेशन पर हूँ अभी, ठीक है, गाड़ी आ गई, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ठीक है। ठीक है।